everyone, this is Irina and welcome you all to your channel Irina Instant Education. इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी एक्ट 2 सीन 3 जहाँ पे एंटर लेडी मैकबेथ यहाँ पे हमने छोड़ा था। इससे पहले हमने किया था मैकडफ का स्पीच किया था। मैकडफ जहाँ पे लास्ट में खत्म करता है एज the great doom's image, Malcolm Banco, as from your graves, rise up and walk like sprites to countenance this horror. When he says, Malcolm, you rise from your graves, उठ जाओ अपने graves and walk like the earth, like an unlaid ghost, भूत की तरह उठ जाओ, that may fit you in this horrible scene. मने इस horrible spectacle में, इस भयानक मंजर में भूत बनकर तुम बाहर आओ, कब्रों से बाहर आओ और भूत बनकर देखो कि क्या हो गया है। मैंने तुम्हारे होते हुए ये सब क्या हो गया है। फिर रिंग द बेल, मैंने घंटी बजाओ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ एंटर करती है। लेडी मैकबेथ को पता तो सब था, लेकिन लेडी मैकबेथ जो है वो नाटक उसका स्टार्ट होता है। Lady Macquarie, what's the business that such a hideous trumpet calls to parley? The sleepers of the house, speak. But what's the matter that you all are making so much noise? You are such an impetuous summons rouses the sleepers in the house. Everybody is sleeping in the house, and why making so much ringing of the bell? Why you are ringing the bell? What has happened? That you are you are calling everyone who is sleeping in the house to come together. माने सब लोगों को क्यों बुला रहे हो? क्या बात हो गई जो ट्रम्पेट बजा के घंटी बजा के तुम लोग सबको क्यों कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुला रहे हो? जो लोग सो रहे हैं उनको क्यों बुला रहे हो? Speak. Tell me. Macduff, oh gentle lady, it's not for you to hear what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder us at Phil. माने he says, Macduff कहता है, oh gentle lady, it is not fit for you to hear what I can tell you. माने dear lady, the news I could tell you is not something you should hear. जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके सुनने लायक नहीं है, क्योंकि the repetition of women's ear would murder as it fell. क्योंकि इस बात को अगर मैं रिपीट करूं, दोहराऊं, तो एक भोली भाली वुमेन की मौत हो जाएगी। माने if I were to repeat it, it would be to kill a tender woman. एक ऐसी बात को रिपीट करके बोलना एक सॉफ्ट हार्टेड वुमेन को किल करने के बजाय मारने के बराबर होगा। माने वुमेन्स तो नाजुक होती हैं, औरतें नाजुक होती हैं, तो एक खबर सुनेंगी तो मर जाएंगी, तो बहुत गहरा है। जबकि लेडी मैकबेथ तो बहुत ही दुस्साहसी है जिसे कहते हैं। एंटर बैंको। ओ बैंको, आवर रॉयल मास्टर्स मर्डर्ड। अब जो है मैकडफ कहता है, अरे बैंको, आवर किंग इज मर्डर्ड। लेडी में वो अलास व्हाट इन आवर हाउस, मैंने कहते हैं अलास व्हाट अ थिंग इट टू बी डन इन आवर हाउस। ऐसी चीज, ऐसी घटना इन आवर ओन हाउस, हमारे खुद के घर में ये हो गया। बैंक को कह रहा है टू क्रूएल एनीवेयर, ये दिस इज क्रूएल एनीवेयर। मैंने द मर्डर ऑफ अ किंग वुड हैव बीन टू क्रूएल एनीवेयर। कहीं भी हो भाई, राजा का मर्डर तुम्हारे घर में क्यों, कहीं भी होता तो इट वुड हैव बीन क्रूएल। So wherever it happened, it would be awful. It is cruel. Dear Duff, I pray thee contradict thyself. Dear Macduff, I beg you, contradict thyself. मैंने change your story, change your saying. तुम बदल लो अपनी बात को, तुम अपनी बात को वापस ले लो. I pray thee, मैंने I request you, you just change your story and say it is not so and tell me that it isn't true. ऐसा बोल दो कि ये सच नहीं है, कह दो ये सच नहीं है। Enter Macbeth, Lennox and Ross. And Macbeth, Lennox and Ross यहाँ enter करते हैं। Macbeth कह रहे हैं, had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time. अगर मैं 1 घंटा पहले मरा होता, ना वो नाटक दिखा रहा है। If I had died an hour before this happened, I would have lived a blessed life. अगर मैं इस जो चीज घट गई है, the murder has been done, and if I had died an hour earlier, it would bless my life. तो मेरी जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाती। For मैंने क्यों की? For because मैंने from this instant there's nothing serious in mortality, because from this very moment, starting from this very moment, there is no reason to keep living. जीने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई सीरियस जीवन सीरियस रह ही नहीं गया है।
ऑल इज बट टॉयज मैंने मिट्टी के खिलौने जैसा है. एवरीथिंग इज मीनिंगलेस. एवरीथिंग ऑल इज जस्ट अ शैडो. इट इज मीनिंगलेस. Renown and grace is dead. Renown and grace मने नाम और शान. Renown मने नाम, grace मने शान. नाम और शान तो एकदम खत्म हो चुका है. They have the grace and fame and grace have ceased to exist. They've all gone, are dead. ठीक है. The wine of life is drawn and the mere lees is left this world to brag of. माने the wine of life, the joy of life has been poured away. चला गया है. जिंदगी का मजा जो वो चला गया है. And in all the world only the dregs remain. Dregs माने only the worst part. बदतर हिस्सा जो है वो सबसे खराब चीज रह गई है. माने मिजरी. ओनली द मिजरी इज रिमेनिंग. ओनली केवल दुख रह गया और कुछ नहीं रह गया. एंटर मेलकम एंड डोनाल्डमैन. मेलकम और डोनाल्डमैन एंटर करता है. तो डोनाल्डमैन कहते व्हाट्स द मिस, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद, व्हाट्स रॉन्ग हैज डन, व्हाट्स रॉन्ग, क्या खराब हो गया, क्या गलत हो गया, क्या बात हो गई. कहते हैं ना मैकबेथ. यू आर एंड यू डोंट नो इट. द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप्ड. द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड. मैंने यू डोंट नो, यू आर बीइंग रॉन्ग्ड, यू आर रॉन्ग्ड एंड यू डू नॉट नो इट. तुम्हारे साथ गलत हो गया और तुम्हें पता भी नहीं है. द सोर्स एंड द फाउंटेन हेड. Fountain of your blood means fountain of your head. The spring, the source, the very origin of your blood has been stopped. तुम्हारे ब्लड का, खून का जो ओरिजिन है, जहां से तुम पैदा हुए हो, जो मेन, जहां से तुम जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिस सोर्स, जीने का जो सहारा है, सोर्स ऑफ इट मैंने जीने का सहारा जो हमारा जो है वो खत्म हो गया है. द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप. मैंने तुम्हारे जो जीने का सहारा है, इट इज स्टॉप्ड. This very spring of your existence has gone dry. ठीक है. मैकडफ. ओ योर रॉयल फादर इज मर्डर्ड. अब मैकडफ जो है वो बता रहा है कि अब तुम्हारे रॉयल फादर की हत्या हो गई. मैंने your father, the king, has been murdered. मैल्कम कह रहे ओ बाय whom. मैंने ओ इज इट, बट बाय whom, किसके द्वारा. Lennox. Those of his chamber as it seemed had done it. Of his chamber मैंने those guards of his chamber, the attendants of his chamber who were sleeping in his chamber, outside the chamber, appears to have done it. Seemed माने appears, देख के लगता है कि उन्हीं लोगों ने मारा है. Apparently the servants who were watching his bedroom, chamber माने bedroom, the servants who were watching his bedroom did it. Their hands and faces were all bathed with blood. मैंने their hands and their faces were covered in blood. उनके हाथ, उनके चेहरे सब खून से सने थे. Bathed माने covered, खून से बने लथपथ था. So were the daggers. और उनके जो daggers थे वो भी, उनके जो तलवार थे वो भी क्या थे, खून से सने थे. They were covered with blood. They stared and were distracted. They were gazing at us. They stared at us. They gazed at us. वो लोग घूर के हम लोग को देख रहे थे. And were distracted. और वो लोग distracted मैंने they were confused. वो लोग बिल्कुल जब हम लोग गए तो वो लोग घूर के हम लोगों को देख रहे थे और वो लोग एकदम confused थे. No man's life was to be trusted with them. Means no man could be safe with them. कोई भी इंसान इन लोगों के साथ safe नहीं है. Now no one is. They shouldn't have been trusted with any man's life. इनको तो trust किया ही जा सकता. Macbeth. Oh, yet I do repent me of my fury that I did kill them. Mani, even so, Macbeth says, I just regret my fury. I regret my anger, which pushed me to kill them. जिसने मुझे मजबूर किया. When I regret that I was forced. My fury, my anger forced me to kill them. मेरे गुस्से की वजह से मैंने उनको मार डाला. Macduff, wherefore did you so? Why did you do so? Why did you kill them? ऐसा क्यों किया तुमने? Macbeth, who can be wise, amazed, temperate and furious, loyal and neutral in a moment? बहुत अच्छी चीज बोली है. Can someone be wise, shocked, calm, amazed माने shocked, temperate माने calm, शांत, furious माने angry, loyal and माने वफादार and neutral at the same time, all at same time. एक इंसान सारी चीजें एक साथ हो सकता है. एक ही इंसान, how can a person be wise? How can someone be wise? माने बुद्धिमान भी हो
और अमेज्ड भी हो माने शॉक्ड भी हो, टेम्परेट माने शांत भी हो, फ्यूरियस माने गुस्सा भी हो। माने एक इंसान में एक चीज हो सकती है ना, बुद्धिमान भी हो और शॉक्ड भी हो और शांत भी हो। टेम्परेट माने शांत, फ्यूरियस माने गुस्सा, लॉयल माने वफादार, न्यूट्रल माने इम्पार्शियल। एक ही समय में एक आदमी में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी हैविंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम मोमेंट। एक ही बार में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? नो मैन, कोई नहीं हो सकता। नो मैन कैन, कोई भी एक ही आदमी एक साथ नहीं है भाई। जो गुस्सा होगा वो शांत नहीं होगा, जो शांत होगा वो गुस्सा नहीं होगा, जो बुद्धिमान होगा वो शॉक्ड नहीं होगा, जो शॉक्ड होगा वो बुद्धिमानी से काम नहीं लेगा। मतलब दोनों में शॉक्ड हो जाए तो इंसान तो मतलब बुद्धिमानी से काम नहीं लेता है। तो वही चीज है, एक ही इंसान में ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकता है? नो मैन, किसी में भी नहीं। द एक्सपेडिशन ऑफ माई वॉलेंट लव आउटरन द पॉजर रीजन। मैंने मेरी जो राजा के प्रति जो प्यार है, मेरी जो राजा के प्रति प्यार है, I had I possessed a love for the king. My love for Duncan. My love for Duncan resulted in a violent rage that made me kill them before I could pause to think. Paused मैंने pause और reason मैंने pause मैंने सोचा ही नहीं, मैंने आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं। पॉज मैंने रुकना, मैं रुका ही नहीं सोचने के लिए, मैं रुका ही नहीं, मैंने कारण नहीं देखा, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं। और मेरी राजा के प्रति जो मेरा प्यार है उसकी वजह से मैं एकदम वायलेंट हो गया। जब मैंने उनको खून से लथपथ देखा मैं एकदम वायलेंट हो गया, मैं एकदम गुस्से में आ गया और मैंने उन लोगों को मार डाला। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आउटरन द पॉजर रीजन मैंने आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ, आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और मैंने उन लोगों को मार डाला। हियर ले डंकन, और ये रहे डंकन पड़े हुए। हे ले डंकन, he his silver skin laced with his golden blood. I mean, his silver skin means his smooth and tender skin, which is streaked with blood. उसकी जो स्मूथ जो है स्किन है, his white skin all splattered with his precious blood. सब उसका जो स्किन है, इतना स्मूथ स्किन है, वो पूरा ब्लड से एकदम सना हुआ है। Like a breach in nature for Rin's wasteful entrance, there the murderers. Mane, there was Duncan, his white skin was splattered with blood, covered with gashes. मैंने बहुत गहरे गहरे घाव थे, that look like wounds to nature that let the rot in. मतलब the gaping wounds looked like openings made in the body for death to enter. माने इनके जो घाव थे, जो शरीर के जो घाव से जहां से खून बह रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये डेथ ओपनिंग्स हैं, मौत के लिए खुले हो। माने मौत को एंटर करने के लिए, फॉर द डेथ टू एंटर। डेथ माने यमदूत, माने डेथ या यमदूत कुछ भी कहें, माने इतने बड़े बड़े घाव थे, उसमें से खून बह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वेस्टफुल एंट्रेंस, माने जो रोए जो डेथ है, drenched in blood, soaked in blood. It was as if death to enter. ऐसा लग रहा था जैसे मौत इसमें घुसकर अपनी मनमानी कर सके, ऐसा लग रहा था। They are the murderers, और वो रहे वो murderers, माने वो रहे वो खून से लगे हुए murderers, खून से, they are the murderers. Steeped in the colors of their trade. ट्रेड माने उनका जो काम है, दैट दे शेड, जो उन्होंने जो खून बहाया। Steeped in the colors माने they were soaked in the blood. Colors माने blood. They were soaked in blood. वो जो next to him, उनके पास ही पड़े थे, and there the next to him were the murderers dripping with blood and the daggers covered in gore. उनकी daggers covered in gore. gore माने क्या होता है? gore माने होता है जो खून से सना हुआ, खून से ढका हुआ, covered with blood. उनके जो daggers थे वो भी किससे थे? daggers जो थे वो भी खून से सने हुए थे। अनमैनरली ब्रीज्ड विद गोर माने अनमैनरली माने माने रूडली, अनमैनरली माने अनरूली या फिर रूडली, बड़े निर्दयता से वो जो है वो उसमें घाव कर गए थे और ब्लड से सना हुआ था। अनमैनरली जब मैंने उनकी जो उनका जो तलवार है वो ऐसे घुस गया और जैसे कोई बादशाह को मैंने इतनी बुरी तरह से मारा कि वो रूडली उसको मारा और उससे जो है वो घाव बह रहे, मतलब सब खून से सन गए।
हु कुड रिफ्रेन हु कुड रिफ्रेन दैट हैड अ हार्ट टू लव, मैंने जिसके दिल में प्यार भरा हो, ऐसा इंसान कैसे अपने आप को रोक सकता है? कौन ऐसा होगा जिसके दिल में प्यार भरा हो? कौन ऐसा शख्स होगा जिसके दिल में राजा के प्रति प्यार भरा हो, वो अपने आप को रोक सके? क्या ऐसा कोई होगा? जिसके दिल में प्यार होगा वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। तो वही वो कह रहा है, कौन ऐसा होगा हु कुड हैव स्टॉप्ड हिमसेल्फ, हु लव्ड डंकन एंड हैड द करेज टू एक्ट ऑन इट? कौन ऐसा होगा जो अपने आप को रोक सकेगा, जो अब डंकन जैसे राजा से प्यार करता हो? ऐसा इंसान अपने आप को कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। लेडी मैकबेथ, हेल्प मी हेंस हो। अब लेडी मैकबेथ जो वो चिल्ला रही है, वो गेट मी, मुझे मदद करो, गेट मी अवे फ्रॉम हियर, मतलब मुझे यहाँ से ले चलो। गेट मी, हेल्प मी हेंस मैंने यहाँ से मुझे ले चलो। हेल्प मी आउट ऑफ दिस रूम आई प्रे। मैं मतलब मैं दिखा रही है कि मैं बहुत एकदम फेंट हुई जा रही हूँ, बेहोश हुई जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मतलब बहुत नर्वसनेस हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हेल्प मी हैंड सो मरे, टेक मी अवे फ्रॉम दिस रूम। मैकडफ, लुक टू द लेडी। अरे मैकडफ कहता है, अरे लुक टू द लेडी, मैंने लेडी का ध्यान रखो, अटेंड द लेडी, ध्यान रखो उस लेडी का, मैंने सी टू द लेडीज हेल्थ, देखो उनका तबीयत बिगड़ रहा है। मेलकॉम असाइड टू डोनाल्ड, मेलकॉम जो है वो डोनाल्ड को बगल में ले जाता है और कहता है, व्हाई डू वी होल्ड आवर टंग्स, दैट मोस्ट मे क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट टू अस, टू अस, माने ही इज सेइंग व्हाई डू वी कीप साइलेंट, हम लोग क्यों चुप हैं? व्हाई आरंट वी सेइंग एनीथिंग, हम लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? The most may claim this argument for us because the two of us have the greatest reason to express our horror and grief. हम दोनों को तो सबसे ज्यादा, हम लोग क्यों चुप बैठे हैं? हम लोगों में तो सबसे, हम लोग का तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर किसी का बनता बिगड़ता है तो वो हमारा है। तो ये बहस करने, ये लोग बातें कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? दिस कंसर्न अस मोर क्लोजली देन एनीवन एल्स, ये तो हमारे से, हमसे रिलेटेड है, हमारा नुकसान ज्यादा है जितना कि किसी और से, तो हम क्यों चुप बैठे हुए हैं? डोनाल्ड बेन कह रहा है साइड में, मैंने बगल में ही, फिर मेलकम से कह रहा है, दोनों भाई बात कर रहे हैं। What should be spoken here? Where our fate hidden an auger hole may rush and seize us. Let's away. मैंने डोनाल्ड बेन कह रहा है, वी कुड से हियर नथिंग, यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। वी कैन से हियर नथिंग, ठीक है। What should we say when we ourselves may be in immediate danger? हम लोग खुद तो डेंजर में है। Where our fate माने किस्मत, हिडन एन ऑगर होल, ऑगर होल मतलब एक ऑगर होल होता है, एक बड़ा डार्क एंड हिडन कॉर्नर, एक माने बहुत ही एक कोना, एक गहरी खाई की तरह, मैंने एक कोना जहाँ पे अंधेरा कोना, मैंने हम लोगों की किस्मत तो एकदम एक कोने में पड़ा हुआ है, अंधेरे कोने में पड़ा हुआ है। पहले से ही मुसीबत आ पड़ी है, बोलने का मतलब है यहाँ कुछ बोलने का क्या फायदा, हम तो पहले ही मुसीबत में है। मेरा सीजस माने वी आर नॉट, ये वी आर इन डेंजर फ्रॉम सम हिडन प्लेस, माने हिडन क्यों बोला, हिडन होगा होल में रशियन सीजर्स, माने अभी हम लोगों को कहां से ये नुकसान हो, माने इन लोगों को पता तो नहीं है कि मैकबेथ ने मारा है, तो अब जो है दुश्मन कौन है वो तुम्हें पता ही नहीं है, तो कह रही कौन ऐसा हिडन दुश्मन है, कौन ऐसा, हु इज द प्लेस फ्रॉम सम हिडन प्लेस इज डेंजर, कौन सा डेंजर, कौन सा खतरा है जो पता नहीं कहां से कौन हमें डेंजर, हमें नुकसान पहुंचा देगा, हमें तो पता ही नहीं है। मेरा शंसीजस कौन आएगा कौन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मारा किसने है, जब हमें यही नहीं पता मारा किसने है, मतलब हमें दुश्मन भी नहीं पता, तो जब दुश्मन नहीं पता तो कैसे समझ पाएंगे कि हमें कौन किस टाइम हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए लेट्स अवे, इसीलिए चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। आवर टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, माने अब ये आंसू बहाने का टाइम नहीं है। लेट अस रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस बिकॉज इट्स नॉट द टाइम फॉर अस टू शेड आवर टीयर्स, इट्स नॉट टाइम फॉर अस टू टेक आवर ग्रीफ एंड टर्न इनटू एन एक्शन। इस समय अपने दुख को पकड़ के रखें और अपने उसका एक्शन लें, उसके प्रति कुछ करें, ये टाइम नहीं है। तो आंसू दिखाने का, इमोशनल होने का टाइम नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा है कि जिसने भाई मेरे पापा को मारा है, हो सकता है वो मेरे को, हम लोगों को भी मार दे।
क्योंकि पता नहीं है कौन दुश्मन है, तो ऐसे में क्या है, दुश्मन पता होता है तो पता रहता है कि इससे हमें खतरा है, लेकिन जब दुश्मन पता ना हो तो और ज्यादा खतरा होता है। तो मैलकम cited मैलकम कह रहा है डोनेबल, nor are strong sorrow upon the foot of motion, माने nor it is the sorrow is so deep that it cannot be expressed in words। हम लोगों का दुख इतना गहरा है कि शब्दों में इसे व्यक्त की नहीं किया सकता। स्ट्रॉन्ग सॉरो माने, स्ट्रॉन्ग सॉरो माने हमारा सॉरो, हमारा जो दुख है इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा डीप है, अपॉन द फुट ऑफ मोशन माने ये इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ठीक है, अपने दुख को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सी टू द लेडी, अब कह रहे हैं कि बैंक को कह रहा है लुक टू द लेडी, लुक टू द लेडी माने सी टू द लेडी, लेडी को देखो, उसको देखो, लेडी का ध्यान रखो। लेडी मैकबेथ इज असिस्टेड टू लीव, अब लेडी मैकबेथ जो है वो, लेडी मैकबेथ इज कैरिड आउट, लेडी मैकबेथ को ले जाते हैं यहाँ से। एंड व्हेन वी हैव आवर नेकेड फ्रेलिटीज हिड दैट सफर इन एक्सपोजर लेट अस मीट, माने जब व्हेन वी हैव क्लोज्ड आवर हाफ नेकेड बॉडीज, क्योंकि यहाँ लोग सो रहे थे, तो ये लोग तो सो रहे थे, फ्रेलिटीज हिड माने, फ्रेलिटीज माने ड्रेस्ड, नेकेड फ्रेलिटीज माने हम लोग जो आधे अधूरे कपड़े पहने हैं उसको हम लोग पहन के आए, हम लोग आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, तो चलो हम लोग पूरे कपड़े पहन के आए, क्योंकि जब सोते हैं, बोला था पहले ही बोला, सोते हैं तो हाफ कपड़ों में रहते हैं। तो कह रहे व्हेन वी हैव, जब हम लोग पूरे कपड़े पहन लेंगे, फ्रेलिटी इज हिट दैट सफर इन एक्सपोज, हम लोगों को अपने पूरे कपड़े पहन के आने चाहिए, क्योंकि सफर इन एक्सपोजर, सफर ठंड से हम लोगों को, ठंड से पीड़ित हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, मैंने लेट अस क्लोथ आवरसेल्व्स when we have clothed our half naked bodies so that we may not be exposed to the chilly air। ये जो exposed to the exposed माने exposure, किससे exposure, chilly air, ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा से हम लोग कहीं, हम लोग को कहीं ठंड न लग जाए, इसलिए पहले हम लोग कपड़े पहन के आए, देन लेट अस मीट, उसके बाद हम लोग आके मिलते हैं, पहले कपड़े पहन के आए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके मिलते हैं। एंड क्वेश्चन दिस मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क टू नो इट फर्दर, क्वेश्चन माने डिस्कस, इन्वेस्टिगेट करें, पहले हम लोग पूरे कपड़े पहन के आए, उसके बाद लेट्स इन्वेस्टिगेट क्लोजली इनटू दिस ब्लडी अफेयर, ब्लडी पीस ऑफ वर्क पर ब्लडी अफेयर, ये जो ब्लडी, ये जो खूनी काम हुआ है, जो खून हुआ है, इसके बारे में तब हम लोग इन्वेस्टिगेट करें, पहले कपड़े पहन कर आए पूरे पूरे, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेट करें क्लोजली, माने बहुत बारीकी से, कि आगे क्या किया जाए उसको हम लोग डिस्कस करें। फियर्स एंड स्क्रिपल्स शेक अस, माने वी आर शेकन बाय डाउट एंड फियर, हम लोग डर से और शक से, हम शक ने हमको एकदम झटका दे दिया है, डर से और शक से, हम लोगों का डर भी है, डर है मैंने जान का खतरा तो है ही, और जान का खतरा भी है, और शक भी है, शक भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पता नहीं है कौन है, तो इससे हम लोग बिल्कुल हिल के रह गए हैं। In the great hand of God I stand, and thence against the undivulged pretense I fight of treasonous malice. In the great hand of God means I am putting myself in the hands of God. माने मैं अपने आप को भगवान के हाथों में समर्पित करता हूँ। I am putting myself in the hands of God, and thence against the undivulged pretense I fight. Scrupulous माने doubts, fears and scrupulous माने doubts, and undivulged pretense माने, undivulged pretense माने अनडाइवर्स प्रेटेंस माने वी आर अफ्रेड ऑफ आवर ओन सेफ्टी, हम लोग अपने ही सेफ्टी से, अगेंस्ट द अनवाइल्ड प्रेटेंस आई फाइट ऑफ ट्रेजनस मैलिस, माने आई कमिट माई सेल्फ टू गॉड एंड डिपेंडिंग ऑन गॉड आई रिजॉल्व टू फाइट दिस डिजाइन ऑफ मेलिशियस ट्रीजन, माने ये जो खराब घटना हुई है, आई फाइट द ट्रेचरस, द प्लॉट बिहाइंड द मर्डर, मैं भगवान के, अपने आप को भगवान पे हैंड ओवर कर दूंगा, भगवान को समर्पित कर दूंगा, भगवान को जो मंजूर होगा वो करेंगे, और उसके बाद रहस्य का पता लगाऊंगा और मैं उसके लिए लड़ूंगा, माने गलत चाहे कुछ भी हो मैं उसके लिए लड़ूंगा। एंड सो डू आई, मैकबेथ कहता है हाँ और मैं भी, मैकबेथ लेट्स ऑल, सो डू आई, ऑल सब लोग कहते हैं, सो ऑल, हाँ हम भी, हम लोग सब करेंगे, मैंने हमारी जान का भी खतरा हो सकता है, पहले इनको डर था, इसने कहा हमारी जान, इसमें हमारी जान का भी खतरा हो सकता है, और भगवान को जो मंजूर है वो होगा, फिर भी हम इस कत्ल के रहस्य को का पता लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है,
तो मैकबेथ कहता है मैं भी, और तो सब लोग कहते हैं हाँ हम भी। मैकबेथ कह रहे लेट्स ब्रीफली पुट ऑन मैनली रेडीनेस एंड मीट इन द हॉल टुगेदर। माने लेट्स पुट ऑन आवर क्लोथ्स, मैनली रेडीनेस माने लेट्स पुट ऑन आवर क्लोथ्स एंड बी रेडी फॉर एनी एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें, तो विचार कर सके क्या करना है क्या नहीं करना है। सॉरी। एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, और फिर हम लोग सब लोग मिलकर इस हॉल में मिलेंगे। ऑल बट मैल्कम एंड डोनाल्ड एग्जिट। मैल्कम और डोनाल्ड को छोड़कर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। मैल्कम कह रहे व्हाट विल यू डू, माने व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो। लेट्स नॉट कंसर्ट विद देम, माने लेट्स नॉट एसोसिएट विद देम, इनसे हम हाथ ना मिलाएं। टू शो एन अनफेल्ट सॉरो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी। मतलब टू शो एन अनफेल्ट सॉरो, अनफेल्ट मैंने जो फील नहीं होता है, द सॉर दिखावा कहते हैं ना, दिखावे की, जो दिखावा ज्यादा करता है, ये जो लोग झूठे होते हैं वो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये कहावत है, जो लोग झूठे होते हैं, इसीलिए वो कहता है लेट्स नॉट मीट विद देम, क्योंकि बिकॉज अ लायर हैज नो ट्रबल प्रिटेंडिंग टू शो सॉरो, ही डज नॉट एक्चुअली फील। जो सॉरो वो फील नहीं करता है, जो दुख वो फील नहीं करता है, उसको दिखावा करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती, वो दिखावा ज्यादा करता है। वो ज्यादा जो रोता धोता है, दिखावा करता है, एक्चुअली उसको इतना दुख नहीं होता है। इसीलिए इसलिए उसे डर लग रहा है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो इशारा उसकी मैकबेथ की तरफ भी है, क्योंकि मैकबेथ भी ज्यादा कह रहा है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ही सेइंग दिस इज परेड, ये शो जो सौरों का जो परेड करते हैं, दैट इज नॉट फेल्ट इज एन इजी थिंग। इनसिंसियर जो होते हैं, जो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, जो दिखावा ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये सौरों का दिखावा करना, दुख का दिखावा करना बहुत आसान होता है। झूठे लोग ही ज्यादा दिखावा करते हैं। आई गो टू इंग्लैंड, वेलकम कह रहे मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। डोनाल्ड मैन कह रहे टू आयरलैंड आए, तो डोनाल्ड मैन कहता है और मैं आयरलैंड चला जाऊंगा। आर सेपरेटेड फॉर्च्यून शेल कीप अस बोथ द सेफर, माने इफ वी आर if it will be safer for us if we live apart, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो we'll be safer, we will be safer if we separate ourselves। हम लोग अगर अपने आप को अलग कर लेंगे तो हम मारे जाएंगे, दोनों एक साथ मारे जाएंगे। तो कह रहे कि हम लोग we will be safer if we separate ourselves, अगर हम लोग अपने आप को जुदा कर ले, अलग कर ले, दूर दूर रहे तो हम लोग सेफ रहेंगे। shall keep us both safer, दोनों लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। where we are there's daggers in men's smiles, the near in blood the nearer body bloody। ये बहुत अच्छी बात बोली है। there's daggers in men's smiles, माने इंसान के स्माइल में भी डैगर होता है, माने इंसान के स्माइल में डैगर होता है। मतलब दोज हु आर मोस्ट, नो मैटर वेयर वी आर, हम लोग का चाहे कहीं भी हो, बट एवरी स्माइल माइट हैव अ डैगर हाइडिंग बिहाइंड इट। जो लोग मतलब जो कभी भी मुस्कुराता है तो उसके पीछे एक खंजर जरूर रहता है। और द नियर इन ब्लड द नियर ब्लडी, माने दोज हु आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू अस एंड देयरफॉर क्लोजेस्ट इन लाइन टू द थ्रोन आर द वंस मोस्ट लाइकली टू ट्राई टू किल अस। माने जो लोग ज्यादा खून से संबंधित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही कह रहा है वन हु इज नियरेस्ट इन किनशिप, माने जो राजा बनने के लिए सबसे ज्यादा पास है, जो रिश्तेदार है, वही सब, उन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ इस खून में हो सकता है। ठीक है, माने हम धोखेबाजों के इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जहां हमारा भाग्य ले चले वही हम लोग चले, हम लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि हर कोई जो मुस्कुराता है उसके मुस्कुराहट के पीछे खंजर रहता है, तलवार रहता है। मैंने सामने से मुस्कुराते हैं, पीछे उनका अब उनका जो मन की जो बात है वो पता नहीं चलती है। द नियरर इन ब्लड द नियरर ब्लड, जो जितना ज्यादा क्लोज बनता है, जो जितना ज्यादा अपने आप को क्लोज दिखाता है, अपने आप को प्यारा दिखाता है, वो उतना ज्यादा, वन हु इज नियरेस्ट इन किनशिप द मोस्ट डेंजरस, जो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी दिखाता है वो सबसे डेंजरस हमारे लिए होता है। मैल्कम, this murderous shaft that shot hath not yet lighted, and our safest way is to avoid the aim।
मैलकम से द मिसचीफ विच हैज बीन सेट ऑन फुट विद दिस मर्डर, जो मिसचीफ हुआ है, जो ये जो चक्कर जो चल रहा है, अच्छा होगा इसके लिए, हैथ नॉट येट यील्डेड, माने ये जो शेफ्ट माने एरो, तीर, माने क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे पिता का मौत हुआ है तो ये तीर हो सकता है हम तक भी पहुंचे। शेफ्ट मीन्स एरो, तो तीर जो हमारे ऊपर छोड़ा गया है वो अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है, हैथ नॉट येट यील्डेड, हो सकता है हमें भी मारने का प्लानिंग हो रहा हो, हमारे लिए भी तीर छोड़ दिया गया हो पीछे से, माने हमें भी मारने का प्लान कर लिया गया हो, लेकिन वो अभी तक उसको एक्शन में नहीं लाया गया, वो तीर हम तक अभी पहुंचा नहीं है। इसीलिए आवर सेफेस्ट वे इज टू अवॉइड द एम, एम माने उसका जो निशाना, तो हमारे लिए सबसे सेफ होगा हम इस निशाने को अवॉइड करें, माने इस निशाने से दूर चलें, माने किसी को तीर, पीछे से किसी ने हमारे लिए भी तीर छोड़ दिया होगा, लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग इस तीर के निशाने से अपने आप को बचा लें, भाग जाएं, हो सकता है हमारे लिए भी किसी ने तीर छोड़ दिया हो लेकिन हम तक पहुंचा नहीं है, मतलब हमें नहीं मारने की किसी ने प्लानिंग की हो, लेकिन अभी तक मार नहीं पाए, तो हमारे लिए सेफ होगा कि हम लोग इस एम को, इसकी जो निशाना जो है, निशाना जो तीर का निशाना है उसको हम अवॉइड करें, उससे दूर भाग जाएं। Therefore to horse and let us not be dainty of leaving taking but shift away, इसलिए therefore to horse माने therefore let us mount our horses, चलो अपने अपने घोड़े में चढ़ जाते हैं, विदाउट सेरेमनी ऑफ लीव टेकिंग, माने किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सेरेमनी, डेंटी माने सेरेमनी, मैंने हो हल्ला करके किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मर्डरस प्लॉट जो है वो तो शुरू हुआ है ना, बोलने का मतलब मर्डरस प्लॉट हैज ओनली जस्ट बिगन एंड वी विल बी सेफेस्ट इफ वी कैन अवॉइड द स्कीम, therefore let's get on our horses and not worry about being polite and saying goodbye, माने किसी को गुड बाय कहना पोलाइटली, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब शान दिखाने की जरूरत नहीं है, बट शिफ्ट अगे, बल्कि हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। there's warrant in that theft which steals itself when there's no mercy left, माने वी शुड जस्ट डिसअपियर, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, एंड वी आर जस्टिफाइड इन स्नीकिंग ऑफ, और हम लोग जो ये जो भाग रहे हैं हम लोग, ये हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि कोई मर्सी नहीं बच गया है, नो मर्सी लेफ्ट फॉर अस टू काउंट ऑन, हमारे लिए नो मर्सी माने कोई दया नहीं रह गया है, अच्छा होगा हम लोग, अच्छा ही इसी में है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, बीचों अच्छा रहेगा कि हम इनसे दूर चले, तो घोड़ों पे सवार हो जाओ, चुपचाप निकलो, किसी को बाय करने की जरूरत नहीं है, जहां हमारे भाग्य ही डूबा हुआ है, the warrant is that theft which steals itself, माने हमारा जो भाग्य है वही जब डूब गया है, तो अच्छा होगा हम लोग यहाँ से भाग जाएं। There is good excuse for stealing away thus from a place where cruel fate may await us, जहाँ पे हमारी जो किस्मत है, इतना क्रूएल फेट माने इतना जो, जहाँ पे मर्सी नहीं है, जहाँ पे किसी के अंदर दया नहीं है, ऐसी जगह से भाग कर अपने आप को बचाने में ही अच्छाई है, और ये बोल के वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, दे एग्जिट, ठीक है, यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, और यहाँ पे आपका हो जाता है सीन 3, एक्ट 2 सीन 3 आपका हो गया है खत्म, और अब हम लोग यहाँ पे ये वीडियो एंड कर रही हूँ, अगले वीडियो में मैं एक्ट 2 सीन 4 कंटिन्यू स्टार्ट करूंगी, फ्रेश स्टार्ट होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और खूब पढ़िएगा, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू।